आज के जमाने में मेंटल हेल्थ की काफी महत्वपूर्णता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़े बूढ़े। विशेषज्ञों की माने तो 14 साल की उम्र से ही बच्चों में मानसिक तनाव आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में लोगों में मानसिक तनाव से ग्रसित ना हो, उसके लिए ही पहली बार कोलकाता में वॉक फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ওয়ার্ক ফর মেন্টাল হেলথ এটা আমরা আজকে এখানে ওয়ার্ল্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের রিজিওনাল কংগ্রেস হচ্ছে, যেখানে প্রায় 24টা দেশ থেকে বিভিন্ন ডেলিগেটস জয়েন করেছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য স্টিগমা মেন্টাল হেলথের একটা বিরাট অংশ, যার জন্য অনেকেই চিকিৎসা পায় না। আপনারা জানেন যে ট্রিটমেন্ট গ্যাপটা 85%, অর্থাৎ 100 জনের মধ্যে 85 জনের ট্রিটমেন্ট পায় না। সেই জন্য ট্রিটমেন্টের জন্য আজকের এই মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেসের খুব দরকার। আর আজকে সেই জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস করেছি। এখানে আমাদের WP এর প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্ল্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আফজল জাভেদ, প্রফেসর নর্মাল সার্টোরিয়াস, WHO এর পাস্ট প্রেসিডেন্ট, আরও অনেকে জয়েন করেছে। এখানে সমস্ত 8টা কান্ট্রি, এটা সার্ক সাইকিয়াট্রিক ফেডারেশন 8টা কান্ট্রি নিয়ে তৈরি, তার মধ্যে ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি ইজ ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ ইট। আমরা সবাই জয়েন করেছি এখানে সারা কলকাতার বুকে। এটা করে আমরা বলতে চাই, দেয়ার ইজ নো হেলথ উইদাউট মেন্টাল হেলথ। আমাদের শরীরটাকে বাইরে দেখে হয়তো অনেক সময় আমরা আবিষ্কার করি শরীরের রোগ, কিন্তু মনের রোগটা অনেক সময় আমরা বুঝি না, এবং মনের রোগটা হাওয়া থেকেও আসে না। মনের রোগটা হয় আমাদের নার্ভের জন্য, ব্রেন থেকে তৈরি হয়। সুতরাং এটাকে যদি আমরা মেন্টাল হেলথটাকে ঠিকমতো মেনটেন করি, আমরা যদি অ্যাওয়ার থাকি মানসিক রোগ সম্বন্ধে, আমরা অনেক আর্লি ডিটেকশন করতে পারি, অনেক আগে বুঝতে পারি, তার চিকিৎসা করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক সুস্থ থাকতে পারি। সেই জন্যই এই অ্যাওয়ারনেস সবার মধ্যে নিয়ে আসা, যে আপনারা যদি কোনো মানসিক সমস্যা হয় আগে থেকে আইডেন্টিফাই করুন, তার চিকিৎসা করুন। এবং এটা একজনের কাজ না, এটা কোনো একটা অর্গানাইজেশনের কাজ না, শুধু গভর্নমেন্টের কাজ না, এটা কারো ব্যক্তিগত প্রয়াসেও সম্ভব না। এটা সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যদি আমরা এর সাথে লড়তে পারি, এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, এই মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস আমরা সবাইকে জানানোর জন্য, যে মানসিক সমস্যা আজকে পৃথিবীর একটা বড় সমস্যা, শুধু ভারতবর্ষেই না, সারা পৃথিবীতে এই সমস্যা। এই স্টিগমাটাকে যদি আমরা দূর করতে পারি, তাহলে আমরা যদি চিকিৎসা করতে পারি, এতে আমরা কোনো ব্যক্তিগতভাবে কেউ উপকৃত হব না, সার্বিকভাবে সামাজিকভাবে আমরা উপকৃত হব। কিন্তু আমি শুধু 3টে ব্যাপার বলবো। একটা হচ্ছে কোনো ব্যবহারিক সমস্যা, যদি 1 নম্বর যদি এটা করে যে তোমার অকুপেশনাল লাইফ অর্থাৎ কাজকর্মের জীবনে যদি তোমার অসুবিধা তৈরি করে, অথবা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ক, কলিগসদের মধ্যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কের অবনতি ঘটায়, অথবা তোমার এই ব্যবহারিক সমস্যার জন্য তোমার নিজের ক্ষতি হচ্ছে বা তোমার আশেপাশের লোকের ক্ষতি হচ্ছে, এই 3টের মধ্যে যদি কোনোটা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি মনে করবে এটা একটা ডিসঅর্ডার, তোমাদের সাহায্যের দরকার আছে। আপনার কাছাকাছি যে কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিদের সাহায্য নেওয়া উচিত। নিশ্চয়ই নিলে, সেটা সরকারি হোক বেসরকারি হোক, যেখানে আপনার সুবিধে আপনি নেবেন, এবং ডেফিনেটলি সেটা আপনার পরিবারের, আপনার সমাজের উপকার করবে। আমি ডক্টর গৌতম শাহ, प्रेसिडेंट ऑफ सार्क साइकियाट्रिक फेडरेशन। मेरा नाम डॉक्टर अफजल जावेद है। मैं वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं जो इस कांग्रेस के ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मौजू के ऊपर वॉक की है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, और आज की ये वॉक जो है वो न सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए अहम है, बल्कि वो हमारे पेशेंट्स, उनकी फैमिलीज़ और केयरर्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर कहते हैं कि मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्टिग्मा का है, और स्टिग्मा को तोड़ने का इससे बेहतर अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता कि आप आके मेंटली इल के लिए आवाज़ बुलंद करें। आप लोगों को बताएं कि जो मेंटली इल हैं वो भी इंसान हैं, उनकी भी ज़रूरियात हैं, उनको भी हमें उसी नज़र से देखना चाहिए जिस तरीके से हम अपने बाकी लोगों को देखते हैं। ये एक ऐसा इनोवेटिव काम किया है यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स ने कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और
हम इसको ना सिर्फ बाकी जगह के ऊपर रिपीट करेंगे, बल्कि हम तमाम कांग्रेसेस में ये कोशिश करेंगे कि इस किस्म का मौजू, इस किस्म का इवेंट, इस किस्म की एक्टिविटी हो, ताकि हमारे मरीज़ जो हैं वो महसूस कर सकें कि सिविल सोसाइटी उनके बारे में सोचती है, उनका ख्याल रखती है और उनके लिए काम करना चाहती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अगर उस मरीज़ को ये यकीन दिलवा सकें कि ये बीमारी जो है ये भी आम बीमारियों की तरह की एक बीमारी है, और वो जिसको हम कहते हैं डोंट सफ़र इन साइलेंस, तो ये एक सबसे बड़ा आज की इस वॉक का मैसेज है कि अगर आप किसी वजह से ज़हनी परेशानी का शिकार हैं तो आप उसको आके बात करें, उसके बारे में अपनी परेशानी का ज़िक्र करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि जो आपके एहसासात हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उनको ये समझाएं कि जो ज़हनी सेहत है, जो मेंटल हेल्थ है, ये भी आम बीमारियों की तरह है। अगर किसी आदमी को बीमारी के लिए, मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो ज़हनी परेशानी के लिए भी आप अपनी फैमिली के अलावा प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर हम इसको जल्दी पकड़ लेंगे तो वो बेहतर होगा, ताकि वो उस आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी। वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की रीजनल कांग्रेस कोलकाता में हो रही है पहली बार, इसलिए हम लोगों ने ये मेंटल हेल्थ वॉक ऑर्गेनाइज किया है। ये 2.5 किलोमीटर की वॉक है, ये विक्टोरिया के चारों तरफ से जाए। उद्देश्य है कि वो इस बारे में सोच सके कि भाई मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। ये कि देखिए, मेंटल हेल्थ आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आदमी को स्वस्थ रखने के लिए, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों। खास करके बच्चों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स 14 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती हैं। उनमें अवेयरनेस की बहुत ही दरकार है और हमें चाहिए कि हम स्टिग्मा रिड्यूस कर सकें। इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं, ये स्लोगन यूज़ करें कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। वॉक में डॉक्टर अफजल जावेद, जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के, वो उपस्थित हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर गौतम शाह, जो इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, जो सार्क साइकेट्रिक प्रेसिडेंट हैं, जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के पास्ट प्रेसिडेंट हैं, उनकी मेहनत, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं। डॉक्टर संजय गर्ग, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, फोर्टिस हॉस्पिटल। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम्स में। इतना स्ट्रेसफुल टाइम्स है, इतने टाइप के स्ट्रेस होते हैं इंसान के लाइफ में, और कोई मेंटल हेल्थ के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। फिर भी आजकल लोग उभर के आ रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं और सोसाइटी को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। द मोर द मेरियर। तो आई हैव जॉइंड द बैंड वैगन ऑल्सो। मैंने इसके पहले भी आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड व्हेनेवर इट हैज़ बिन अबाउट मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। और आज वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन दे हैव कम टुगेदर फॉर अ ब्यूटिफुल कॉज, एंड Dr. Gautam Shah is organizing this whole thing. So I'm very glad to be part of such beautiful initiative to create awareness about mental health. आज की जनरेशन में कई तरह के मेंटल प्रेशर्स हैं, वो कैसे समझेगा कि वो मेंटली डिप्रेशन है, डॉक्टर से कंसल्ट करेगा? आपको क्या लगता है? इसीलिए ही तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अचानक से समझ में नहीं आता है। तो जब भी आपको लगे कि, क्योंकि आपको अलग होने की ज़रूरत नहीं है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। Whenever you think you're feeling extraordinary low also, या फिर डिप्रेसिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप ऐसे ही हेल्प सीख करो ना, डॉक्टर्स आपको गाइड कर देंगे। सो आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू नो, यू आस्क फॉर, दैट्स अ वेरी गुड सुपर पावर व्हेन यू लर्न टू आस्क फॉर हेल्प। तो वो इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ लव। तो आप अपने आप से जितनी मोहब्बत करेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि अच्छा मैं ठीक नहीं हूँ, अच्छा एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। यू विल अंडरस्टैंड, योर लाइफ विल टेल यू, योर बिहेवियर विल टेल यू, योर लाइफ स्टाइल विल टेल यू दैट इट्स टाइम। और ऐसा नहीं है कि कुछ एक बहुत ज़्यादा बड़ा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। कभी कभी हम ऐसे भी डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जा सकते हैं। यू नो, in the foreign countries it is mandatory to go and consult therapists and psychiatrists as a part of your regular routine, क्योंकि वहाँ पे यू नो प्रोडक्टिविटी, इंसान का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास या कोई मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास आप जाओ। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड टू फॉलो एज अ रूटीन। अगर आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हो, अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हो, होल बॉडी चेकअप करा सकते हो, तो आप मेंटल हेल्थ भी चेकअप करा सकते हो। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल रूटीन।
दैट्स व्हाट आई डू। पता नहीं ये शब्द मुझे, डिप्रेशन जो शब्द है ना, ये मुझे पसंद ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान के बस में नहीं है कि वो लड़के उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाए। वो हौसला अंदर से आनी चाहिए, चाहे वो जितनी भी बड़ी तूफान हो, कश्ती को किनारा मिल ही जाता है।